Subscribe and click the bell icon for television updates. देखिए, I'm going to answer this. मैंने अगस्त में उनके खिलाफ डिवोर्स पिटिशन फाइल किया था और उन्होंने समन्स मिस वो करते गए. फेब तक या मार्च तक वो समन्स मिस करते गए. इट्स नॉट लाइक ही वाज सो बिजी ही डिडंट हैव टाइम. ही नेवर एड्रेस्ड द कोर्ट. देयर वाज समन्स, right, for which he was called to the family court. He never came. He's disrespected the judicial system in many ways. Yes, I took an injunction order against him now from entering the house and against Kavish because जून में हमारा सेपरेशन हुआ था. सेपरेशन नहीं बोलूँगी मैं ऑफिशियली, बट हमारा ब्रेकअप, हमारा एलिज्ड ब्रेकअप हुआ था. तब से लेकर उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा कि काविश he's a child, he has expenses, he has needs, he needs love, he needs emotions as well as of both parents, right? He goes to school, उसके खर्चे होते हैं, चाहे उसके कपड़े हों या बर्थडे पार्टीज हो या कोई भी खर्चे हो. He has extra classes. कभी भी उन्होंने मुड़ के नहीं देखा, right? Then again, मैंने आप लोगों को वो email दिखाया था, जो I will come to that, I'm going to show you the video of that. He came to the house in November, on the 2nd of November. I think 16th of November उनके पास already एक magistrate court में उनकी appearance का day था, पर वो 16th तक नहीं रुके, वो 2nd को ही आ गए घर में, unannounced. For which then again he was called to the cop station. I complained to the police. उसका भी written complaint मैंने दिया है. So I don't think he is taking responsibility. 1, 2, अगर कोई कोशिश करेगा तब आप उसको deny करोगे, right? देर इज़ अ लीगल सिस्टम. आप उसके थ्रू क्यों नहीं करते? हमारे 2 काउंसलिंग सेशंस हो चुके हैं जिसमें काउंसलर ने उनको पूछा है, आपको मन नहीं करता अपने बच्चे से मिलने का, राइट? तो उनका रिप्लाई क्या था? आई वॉज ओके टू गिव हिम विजिटेशन राइट्स. ही डिड नॉट टेक इट. ही सेड आई वांट फुल कस्टडी, आई वांट फुल कस्टडी. बट क्यों? एंड देन ऑन द अदर साइड ही इज सेइंग मैं तो कुछ काम करता नहीं हूँ. जब काउंसलर ने बोला कि आप डोंट यू वांट टू डू समथिंग फॉर योर चाइल्ड, इज लाइक I really don't have anything, आपको तो पता ही होगा. And then I said, then how will you take care of the child? I am responsible, I am capable, I am willing, and I am doing a really good job as a mother. I am taking care of the child's holistic well-being, चाहे उसकी mental health हो या physical health हो, emotional health हो. I am doing everything. चाहे उसको therapist के पास लेके जाना हो. Then how are you being a responsible parent? आप सिर्फ एक ego play के लिए बच्चे को मिलना चाहते हो. बच्चे का बचपन बीत रहा है. Why can't you just take visitation rights and come and meet the child? Correct? This is my answer. Anything else? Although I was going to come to the child's point, I have many more things that I want to share in that. निशा, ये जो आप स्क्रीनशॉट्स दिखा रही हैं और सारी जो चीज़ें आप दिखा रही हैं, how authentic is that? मतलब especially the screenshots. I would just like. Listen, ये आप अपने दिल से पूछिए. I am not the kind of person who participates in controversy because I would not meet you after 1.5 years. मैं रोज़ बैठ के YouTube वीडियोज़ बनाती. And authenticity आपकी अपनी credibility के साथ आती है. This is not my claim to fame. I have a really good body of work in the last 21 years. I'm a credible name in advertising. तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. I want to put this behind us. Right? And क्योंकि वो एक मीडिया ट्रायल इनिशिएट कर चुके हैं, मैं नहीं चाहती है कि ये कंटिन्यू हो, बिकॉज नाउ देयर आर अदर पीपल लाइक कैरेक्टर विटनेसेस एंड फ्रेंड्स हु आर जंपिंग इनटू द पॉन्ड एंड पार्टिसिपेटिंग इन इट फॉर वट एवर रीजंस आई डोंट नो. I don't want to do that. I want to put an end to this. This is absolutely authentic. I have my team of lawyers today, and I don't know how you guys can cross-check it. You can come to, their office and have a look at it. But I can't let you take the documents because there are limitations. I'm not allowed to just show my address or show my name or show my PAN number. I can't do that. इसलिए वो सारी चीज़ें blur की हुई हैं. Well, Nisha, right after Rohan Karan's press conference, आपसे बात करने की मीडिया ने कोशिश की थी. So you knew everything. आपने obviously press conference देखा होगा, आपको पता होगा आपके ऊपर क्या क्या allegations लगाए. जब next day मीडिया ने आपसे बात करने की कोशिश की, you ignored it. Correct. What was the reason for ignoring? Because आप at that moment ही अपने आप को Because I don't want to be नहीं, एक मिनट, मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर रही हूँ. Like I said, I am here for those people who care to know my story. And प्रूव क्या करूँगी? यहाँ पर कोई जस्टिस थोड़ी मिल रहा है हमको, वो तो हमको लीगल सिस्टम में ही मिलेगा ना. करेक्ट? क्या मीडिया ट्रायल इज गोइंग टू मेक अस कम टू अ जुडिशियल कंक्लूजन? नहीं ना. So I don't want to encourage this trial, but unfortunately I have to get into the puddle.
to explain my side of the story. I didn't want to be a part of this. And it is not like Karan जब मेरे ऊपर एक allegation लगाएगा मैं अगले दिन उसको बोल दूँगी हाँ ये है हाँ ये नहीं. I have work to do. I have to go to my shoot. It takes long hours. I work day and night. Right? मुझे अपनी energies एक तरफ डालने को अगर कोई allow करे, then I will do it. Right? Now he's saying he doesn't have work, so maybe that's why he's making those videos. But I have work. I have to raise a child. Okay, so that was the car. We've shown all the documents pertaining to the car. Now I'm gonna address the issue of money. Karan कहते हैं कि मुद्दा सारा पैसे का है. Want to show that video? इसलिए मुद्दा सारा पैसे का है और उसी वजह से पहले दिन से उसने जो किया वो किया. उसके बाद मेरी फैमिली को रोप इन किया गया सेकंड एफआईआर में जो कि 25 जून को फाइल की गई जहां पर मेरे पेरेंट्स को 337 तो जब पैसे मांगे ही नहीं तो मुद्दा पैसे का कैसे हो सकता है. When I met Karan in the year 2008, he was the assistant stylist and I was the lead of the film opposite Jimmy. Right? That's where we met. मुद्दा कभी पैसे का था ही नहीं. It's not like I walked into royalty or something when I met him, right? जो भी बिल्ड किया हम दोनों ने साथ में मिलकर बिल्ड किया, चाहे वो घर था चाहे वो गाड़ियाँ थी. उनका जो शो जिसकी वजह से उन्हें इतनी पॉपुलैरिटी मिली वो मुझसे मिलने के 2 साल बाद उनका शुरू हुआ. सो हाउ कैन द मुद्दा बी अबाउट द मनी? आई हैव नॉट आस्क्ड फॉर एलिमनी बट करण सेज आई हैव आस्क्ड फॉर एलिमनी. सो ही नीड्स टू शो इट कि कहाँ पर लिखा है कि मैंने एलिमनी मांगी है. जब मैंने नहीं मांगी तो ऑब्वियसली आई कांट शो इट. येस वी हैव आस्क्ड फॉर compensation or whatever the right term is, maintenance for the child, but in the counseling sessions on record I have said this, even if he doesn't want to pay that I am okay with it. It's my privilege to raise my child, but I want this whole thing to end. ये मैंने on record कहा है. Right? I will not spoil my own case by just coming here and lying or creating inauthentic evidences or whatever, right? You want to show that maintenance? So the point is, वहाँ पे लिखा है towards the maintenance and education of the minor child. I have not asked for any alimony. In fact, in the new petition, in the new counter petition at the family court, Karan Mehra has asked for full custody and he wants me to pay him alimony and the child's maintenance. This is what is written on his paper. That the interim maintenance be granted to the petitioner, who is Karan Mehra, and the child. I'm sure ये सब उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोला होगा. जो वो बोल रहे थे 1400 पेज का पिटिशन मैंने फाइल किया है, वो यही है 1400 पेज का पिटिशन, क्योंकि उसकी कॉपी मुझे तो मिलती है. Now, addressing the issue of the affair. Once me and Karan have broken up, what I do in my personal life is none of his business, and what he does in his personal life is none of my business. We are adults and we know how to conduct ourselves. We are not answerable to each other for it. Now he's walked away from my life and I have walked away from his life. बार बार वो कहते हैं कि कौन है वो लड़की जिसके साथ मेरा अफेयर है, मुझे बताओ वो लड़की कौन है. आई एम सो सरप्राइज्ड दैट अगर मैं बता दूं कि वो लड़की कौन है, he is not even bothered about the respect of that girl. I know as a woman what it feels like when fingers are pointed, when trolls happen. I don't want that to happen to any other girl. And so I'm not going to take her name. But उसका नाम, उसका एड्रेस, उसके वैलेंटाइंस डे गिफ्ट्स, उसकी फ्लाइट टिकट्स, ये सारी अटैचमेंट्स कोर्ट में जा चुकी है. Like I said, there is only limited stuff that I can share here. Now addressing the issue of the kid. निशा, one question. हाँ, please. जब करण ने आपके रिलेशनशिप के बारे में ओपनली कहा और आपको जब ये सब चीज़ें पता चली, so what was your reaction from your end? उन्होंने कहा कि जिसके साथ ये अफेयर वो पहले से है, तो आप उनका गर्लफ्रेंड का नाम लेने से क्यों हिचकिचा रही हैं? क्योंकि मैं करण नहीं हूँ. Because I am not Karan and I am not here to compare. I will do what I have to do.
यहाँ पे मैंने कहा मैं किसी को अटैक करने के लिए नहीं आई हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आई हूँ. दैट मीन्स एवरीथिंग दैट ही हैज़ सेड अगेंस्ट मी, दैट इज़ द पार्ट दैट आई एम producing a counter for. And he must have said 100 things. I don't have to counter everything. But the things that are important, जो message बाहर जाना चाहिए, those are the only points I'm addressing. Only because he is saying it, I'm not going to do it. And also, you know, you said ki, what I am doing is none of his business and what he is doing is till the time आप लोगों का divorce नहीं होता है, it's still, you know. Yes, a on business paper, of- on paper. But अगर divorce 5 साल बाद होगा, you want me to just stay on there? So that's As a what- woman, I'm asking you. You want me to just hang in there? No, but that is what Karan also said. So He you said think that about it. Ramana- Is it even logical what he's saying? Once he makes an exit from my life, he's made an exit, right? What I do is my business. I'm not answerable to him. And उसका relation क्या है इस केस से, मुझे आप ये बताइए. आपने क्या किया? आपने इतने मड स्लिंगिंग की क्योंकि आपको पता है कि यूर अ पब्लिक फिगर, शी इज़ अ पब्लिक फिगर, सो इट्स वेरी इजी कि वही हेडलाइंस बन जाए, कि पूरे केस से पूरी चीज़ हट के उस पॉइंट पर आ जाए. और वही हुआ, ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स अ हॉट टॉपिक, पीपल वांट टू नो व्हाट्स हैपनिंग. बट निशा, डू यू अग्री विद ऑल द एलिगेशंस जो उन्होंने आपके डेटिंग पर और ये सारी चीज़ों पर बयान दिया? डू यू अग्री टू व्हाटएवर ही आई एम नॉट आंसरेबल. I don't feel the need that मेरी personal life, I will share a part of my life that I wish to share. Right? All of us have our personal life. We are not answerable to each other. मुझे लगता है कि जो एलिगेशन मुझ पे लगाए हैं, जो सीरियस एलिगेशंस हैं, जो मैसेज पहुंचना चाहिए, those are the only allegations I'm going to talk about. And I have in a very subtle way given my message out. We are adults, and what I do after he's left or what he does after I've left is none of each other's business. But then, you know, you said कि मैं कभी I have never been into the controversy. Now, नहीं, he has been into the controversy. No, I did not say he has been. Okay, you have never been into Yes. the controversy. So, have you ever thought कि हम mutually बैठ के इस चीज़ को खत्म कर सकते हैं? Didn't I just show you the email? मैंने अभी तो बोला, मैंने दोस्तों से बात की, लॉयर्स ने उनको मेल किया, मैंने उनको व्हाट्सएप किया, मैंने उनको ईमेल किया, मैंने काउंसलिंग सेशंस में बोला. यही तो मैं बोल रही हूँ. ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ, कि हम बैठ के बात करें. We are human beings. We don't have to act like animals. We can talk to each other and we can sort it out. What is the point of this case? It is going to go on till years. What is the point? हम सब mental peace चाहते हैं. He should move on and I should move on. And there is a child involved. अगर वो मुझे मेरी energies channelize नहीं करने देगा अपने काम में, अगर मैं यही करती रहूँगी या उसके हर YouTube वीडियो पे मैं आंसर देती रहूँगी, तो मैं अपना काम कब करूँगी? वो बच्चा पलेगा कैसे? वो उसकी स्कूल की फीस कौन भरेगा? इफ़ ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, जो क्वेश्चन आपने मुझे पूछा था, तो वो क्यों नहीं कोर्ट के थ्रू उससे विजिटेशन राइट्स करते हैं, या क्यों नहीं बोलते कि चलो मैं एक एक्स अमाउंट, या चलो उसके स्कूल का मैं ख्याल रखूंगा, या तुम ये करो? क्यों नहीं करता? कुछ भी क्यों नहीं बोल रहा? Why is he silent? He is making all these videos on YouTube and Instagram. 100 days में अब इससे नहीं मिला हूँ अपने मिनियन से. मैंने एक बार उसको कमेंट किया, so who stopped you? Yes, there is an injunction order, but you can come through the court because you've behaved like that. और जो दो लोगों के बीच में होता है वो उन दो लोगों को ही पता होता है. आप एक लिमिटेड वे में ही ये नॉलेज शेयर कर सकते हो. एंड आई डोंट वांट टू स्ट्रिप एनीबडी और कॉज एनी डैमेज टू एनीबडी. लाइक आई सेड, मैं भी चाहती हूँ कि ही शुड डू वेल इन लाइफ एंड ही शुड जस्ट गो एंड लिव हिज लाइफ एंड लीव मी अलोन. इफ ही कैन हेल्प मी बिकॉज ही ऑल्सो co-produced the child, then great. If he doesn't think that he wants to help me and he doesn't want to be responsible, it's okay. I'm still okay for Kavish and him to meet. Because Kavish is also going through things. There are questions that he also asks me. I'm treating him like a flower. I'm doing everything, right? उसको प्रोटेक्ट करना, उसके क्वेश्चंस का जवाब कैसे देना, मुझे भी नहीं पता. आई एम कंसल्टिंग बिहेवियर थेरेपिस्ट, आई एम कंसल्टिंग ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, आई एम कंसल्टिंग डॉक्टर्स कि काविश ने मुझे ये पूछा, मैं इस बात का कैसे जवाब दूँ. और आप ये वीडियोस बना रहे हो और आप बोल रहे हो कि जब वो बड़ा होगा मैं तो उसके सामने पेपर्स रख दूंगा कि ये बेटा देख ले. ये आपके एस्पिरेशंस है अपने बच्चे के लिए, ये प्लान्स है आपके फ्यूचर प्लान्स अपने बच्चे के लिए. इट्स नॉट फेयर. यू नीड टू सिट डाउन एंड वी नीड टू टॉक. Right? I'm not interested in this mudslinging. I really hope that this is the last time I have to come out and speak. निशा, I just wanted to know कि जैसा आपने कहा कि मैसेजेस और ईमेल्स ड्रॉप किए गए थे, तो क्या ये बैठ के या कॉल्स पे या फिर आपने कोशिश की कि आपकी तरफ से कि ये क्या बैठ के सॉल्व किया जाएगा? जी, मैं वही तो बोल रही हूँ, वो emails में यही तो लिखा है, right? There were other mails also that were shared with him, and there is something known as a mail for prejudice, right? Sagar, that's what it's called.
वो कॉन्फिडेंस में दो लॉयर्स के बीच में एक्सचेंज होता है. इट इज़ नेवर सपोज टू बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट. यू नो व्हेन यू आर टॉकिंग, जब आपकी बात चल रही होती है, दीज आर सम लीगल एथिक्स दैट वन फॉलोज. उनकी लॉयर ने उसका भी प्रिंट आउट लेके अटैच करा हुआ है. यू नो थिंग्स दैट हम जो एज अ कपल ट्राई कर रहे थे, इफ़ यू वर ट्राइंग टू डू सम हिसाब, वो चीज़ों को गलत वे में कोर्ट में प्रेजेंट की गई हैं. तो मैं तो खुलेआम सबके सामने बोल रही हूँ, बिकॉज दिस विल बी माई लॉस. अगर मैं ये नहीं चाहती हूँ और फिर भी मैं ये चीज़ें क्लेम कर रही हूँ, देन दिस इज माई लॉस. इफ दिस वॉज अबाउट मनी, देन आई वुड हैव कंटिन्यूड द बैटल. Today, I would not say I'm okay to take care of my child. I would say, yes, Karan Mehra, you have to pay for the child. But I'm not saying that. 1.5 साल भी मैंने संभाला है और आगे भी मेरी काबिलियत होगी, मैं संभालूंगी, क्योंकि वो बच्चा अपना नसीब लिख के खुद आया है. आपने जैसे कहा कि वो हर चीज़ जो बोल रहे हैं, आपने लॉकअप में कुछ चीज़ें जो थी आपने रिवील करी, और वो चीज़ें जब सामने आई, करण ने उसे भी अलग वे में लिए, जबकि उन्हें भी पता था ये सब चीज़ें, राइट. आपने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी करण मेहरा की, तब आपने उन्हें कुछ बोला था इसके बारे में कि लाइक ये तो आपको पता थी, फिर आपको मीडिया में ये सब चीज़ें लाना? आई डोंट टॉक टू करण. और जो चीज़ें मैं बोल चुकी हूँ, मैं जो भी बोलती हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट. मैं 2 चीज़ें नहीं बोलती हूँ. जो मैंने लॉकअप में बोली, आई विल स्टिक टू इट. वो पूरी सिचुएशन, वो पूरी सर्कमस्टांस मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करके बोली थी. टुडे वी आर नॉट इन अ सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप. जिन्होंने वो नहीं देखा, दे आर वेलकम टू गो एंड सी इट. सो आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, बिकॉज दैट वाज अ शो. You know what I'm saying? This is real life. We're talking like real people. I'm Nisha. I'm not really... It's not fair to take a particular content from some other IP or whatever, talk about it. I'm not sure that's the right thing to do. जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, यही आपकी रिलेशनशिप को अलग वे में जो अगेंस्ट होकर बोले थे. मेरा मुद्दा वही है आपसे पूछना. नहीं, उन्होंने बहुत गलत लाइट में जो कि आपने बोला पोर्ट्रे किया है, उसको ट्विस्ट किया गया है अपने तरीके से. और मैं उनसे बात नहीं कर पाई, बिकॉज आई टोल्ड यू आई एम नॉट इन टच विथ हिम. और इतना कुछ हो गया है अब तो मुझे, इट वॉज शॉकिंग, इट हर्ट्स, इट पेन्स, बिकॉज देन देर आर ऑल दीज ट्रोलर्स हु गो बाय समबडीज पर्दे पर जो आप एक किरदार निभाते हो, उसके बेसिस पर आपका एक्चुअल कैरेक्टर जज करते हैं लोग, राइट. अगर आप एक गुंडे का कैरेक्टर निभा रहे होते तो आपको नहीं कोई बोलता. पर अगर आप एक गुडी टू शूज़ या आप एक भगवान का किरदार अगर निभा रहे हो, तो लोग मानेंगे नहीं, उस पर ही पत्थर फेंकेंगे जो उस पर पत्थर फेंक रहा है. सो दैट इज़ जस्ट नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी एंड आई फील इट्स नेचुरल एंड आई मीन दैट्स ओके. आई कांट रियली ब्लेम पीपल. निशा, ऑल्दो आपने बोला कि यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, बट एक बहुत बड़ा एलिगेशन जब हो जाता है, जब किसी के रिलेशनशिप को भी खास तौर पे भाई बहन के रिलेशनशिप पर बोला जाता है. वेल, करण मेहरा ने जो एलिगेशंस लगाए हैं वो कुछ इसी तरीके से है. उन्होंने कहा है कि जिनको आप भाई बोलती थी, आप उन्हीं के साथ में रिलेशनशिप में थी, और ये सब उनके आंखों के सामने पीठ पीछे हो रहा था. No, he's lying about it. He's lying about it. The way he's saying it is completely wrong. And I think that, again, like I said, that कुछ चीज़ें बहुत complicated होती है उनको समझाना इस तरीके से. And therefore, I don't want to even touch that topic. I've already said जो मैं कर रही हूँ, उसके लिए मैं answerable नहीं हूँ किसी को. As far as I'm not hurting anybody, everything is okay. This is what I feel. उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिसके साथ आपको जोड़ा गया था, क्या उनकी फैमिली की तरफ से आपको कुछ प्रेशर या कुछ चीज़ों का? I don't want to comment on someone else here. Today I'm here to talk about me. तो मैं सिर्फ अपनी ही ज़ुबानी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी. आई डोंट हैव द राइट टू टॉक अबाउट समवन एल्सेस फैमिली और टू कोट एनीबडी. उन्होंने कुछ बोला क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनकी भी वाइफ है, उनके भी बच्चे. आई विल लेट सी, एवरीवन इज़ एन अडल्ट. मैं किसी की रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ. जिनको अपने लिए बात करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था लाइक यू सेड, सो नाउ ऑल्सो ही कैन टॉक एंड यू कैन रीच आउट एंड टॉक. आई एम नॉट गोना like represent anybody. I'm only representing myself here today. So any questions directly pertaining to me जो मुझे लगेगा I can answer, I'll be happy to answer. You also said कि कुछ लोग हैं जो बीच में कूद गए, उन लोगों ने भी बोलना स्टार्ट कर दिया. I'll come to that point. हाँ. I'll come to that point. Okay, ठीक है, आप Yeah. आइए. I'll come and then we'll take that question. You want to talk about yourself and you were representing yourself. Yes. So this technically concerns you. What is the nature of your relationship with him? Because Karan has accused you of being in a relationship with him. So if you can just clear the air.
So I feel it's not pertaining to the case. It's not important for me to clear the air, and only because Karan has put an allegation on me, he'll tomorrow say that he wants the moon, or he'll say Nisha went and got the sun or ate it up, or he'll say anything out of his whims and fantasies. I can't give a reply to everything he says, and I'm not comfortable sharing certain things about my life because I don't think that I'm answerable for those areas of my life. Everybody has the right to draw a boundary around them, and I think I should also be given that right. Only because I'm a public figure and we are in this open communication where people can ask me questions doesn't mean that I have to answer every question. So I'll just like to respectfully, not take up this question. Yeah? Can I move on to the next one? What do I say about Kavish? हमने sporadically हर point में उसके बारे में बात की है. But Karan has said I'm not a good mother. He's asked for full custody. He has said I'm completely mentally unstable. और वो धीरे 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 वो unstable उनके counter petition में वो मुझे पूरा पागल ही बना दिया उन्होंने. Okay? And he said चाहे 5 साल लगे या 5 महीने लगे, he is going to remove Kavish of my custody. So, like I said, भी सामने आई थी कि आपको सच में कुछ इश्यूज हैं और जहाँ पे आपने भी कुछ थोड़ी बातें की थी, तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ ऐसा है भी या नहीं है. नो आई डोंट थिंक कि कोई कन्फ्यूजन की बात है बिकॉज इस बारे में मैंने लॉकअप में बहुत ओपनली बात की है अबाउट मेंटल हेल्थ. And I'm a huge promoter and an advocate of mental health. I talk about it openly. To shame somebody for their mental health issues is not the right thing to do. And we live in today's times where all of us have some or the other kind of a thing. It's just that it's not detected. क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा है, हम ओपनली जाते नहीं हैं. लोगों को अगर हम बोले नहीं कुछ इसका है मेंटल हेल्थ इशू, कैन वी विजिट अ साइकियाट्रिस्ट, लोग बोलते ओ माय गॉड ये पागल हो गई है क्या, ये साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगी. वी नो इट, वी आर ऑल लिविंग इन दिस सोसाइटी, वी नो द स्टिग्मा दैट्स अटैच्ड टू मेंटल हेल्थ. Right? So yes, I've had challenges in the past, but the way he's saying it that I'm crazy, I'm mental, I'm incapacitated to take care of my child, that's not correct. That's not correct. मैं एक प्रोफेशनल हूँ, इतने सालों से काम कर रही हूँ, बहुत लोगों के साथ काम किया, चाहे वो प्रोडक्शन हाउसेज हों, डायरेक्टर्स हों. आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड. आई एम अ प्रोफेशनल. आई रिपोर्ट टू माई शूट्स ऑन टाइम. आई लर्न माई डायलॉग्स. I raise my invoices. I'm conducting a home, a child, his education. I meet the teachers for PTM. I make sure he does his homework. How else can you prove that you're mentally stable? And you really don't have to. You really don't have to prove it. It's just out there. Does he has any proof, like डॉक्टर से रिलेटेड या साइकियाट्रिस्ट से रिलेटेड, या आपका जो मेंटल हेल्थ है वो इतना खराब है जो. How can he have proof about मेरा mental health खराब है? This happened in, मैंने इस बारे में लॉकअप में भी बोला है बहुत elaborately. So I don't know if I should repeat it because I didn't think we would talk about this today. But yes, in 2014 we had a child which we miscarried. In 2015 there was an extremely abusive incident that happened in our life, my life. And Karan was not at all supportive during that time. And whether it was emotionally, in any way, whether I wanted therapy, I've written all these things. मैंने last time आप लोगों को ये बात बताई थी, I think in the first press conference, and then lockup में भी ये बात थोड़ी सी about mental health के बारे में बात हुई थी. इसकी भी जो भी evidences हैं वो कोर्ट में submit हो चुके हैं. And that time we were almost like going through a breakup of sorts, and we were not happy. Like I was not happy but he was busy, right? He didn't have the time. And that is the time when I had gone to a therapist and I was detected with depression or depressive phase of bipolarity. Bipolarity is a mood disorder. But then I went for my therapy sessions. It went on for about a few months and then it was all okay. But saying something like, you're mentally unstable, Karan को पता है that I've been a primary caretaker of our child Kavish. Does he not even think of the impact that it will have on Kavish's brain या Kavish's mental health अगर मैं और वो अलग हो जाते हैं? Because Kavish and we have a very strong bond. तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? अगर आप बच्चे का भला चाहते हो, बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा है, उसकी परवरिश अच्छे से हो रही है और हो रही थी भी जब आप बिजी थे, आप अपना शूट कर रहे हो, आप यहाँ वहाँ जा रहे हो, तो बच्चे की तभी भी परवरिश हो रही थी. So how can you go as far as saying that she's not a good mother, she's mentally unstable? You'll have to prove it, mister. You'll have to prove it. And you're not a doctor, and neither is your lawyer a doctor. Right? So don't try to become one. You can't just say anything and not just support it.
So that's it, and then I want to show you guys the video कि November 2 तारीख को, 1 second before you play it, मैं जी का शो कर रही थी और मुझे कोविड हुआ था, मैं क्वारंटीन में थी और मेरा 7th डे था कोविड का, और मुझे डॉक्टर ने बोला था टू गो एंड गेट माई CT स्कैन. सो आई फॉलोड ऑल द प्रोटोकॉल्स इन माई सोसाइटी एंड आई वाज सेंट फॉर CT स्कैन. जब मैं वहाँ गई तो मॉम का मुझे फ़ोन आया कि बेटा करण आ गया 6 लोगों के साथ, and he just came. So I'm going to show you a glimpse of the video. And you have an FIR again. That's not he's coming with me. He's my parents or me or whatever. Really? क्या क्या आप लोगों ने कर लिया तो? All the lies that you've spoken of. That's look. Show the other video. So it is the 2nd of November. I was detected COVID positive on the 28th and I was in quarantine in this room. And Karan has just come in. I went out for the CT scan. He doesn't have any permissions to come in the house. He's opening any drawers, any cupboards, taking everything out. Kavish was sitting right here. Doesn't even care, and he's come with all these people. I don't know who these people are. They're hiding themselves and I asked them who they are. So he just came in unannounced. इसके बाद मैंने कॉप्स को फ़ोन किया था. We went to the cop station. I said अगर इन्हें अपनी चीज़ें चाहिए थी तो ये मुझे इंसानों की तरह एक मैसेज कर सकते थे कि 2 तारीख को, 4 तारीख को, ट्यूसडे को 7 बजे, 3 बजे, व्हाटएवर, कि मैं आ जाऊँ. आई वुड हैव सेड ओके. मैं ऑलरेडी अपने लॉयर्स से पूछ रही थी कि इसका सामान यहाँ पे पड़ा है, यू नो हाउ डू वी सेंड इट अक्रॉस, बिकॉज वो ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें बोल चुका है यूट्यूब पर. तो आई डोंट नो व्हाट ही इज़ गोना मेक आउट ऑफ इट, और ही विल प्रॉब्ली थिंक दैट आई एम ट्राइंग टू बी फ्रेंडली और व्हाटएवर, आई डोंट नो. सो आई वाज बॉदर्ड एंड दिस इज़ नॉट द वे यू जस्ट कम इन अनअनाउंस्ड. इट वाज सो इंटिमिडेटिंग क्योंकि आप 6 लोगों के साथ आए हो जो गुंडों की तरह लग रहे थे. एंड यू सॉ दैट मैन, ही वॉज राइट इनसाइड माई वार्डरोब. मतलब वो जो रूम था, जो मैंने बोला आई वॉज क्वारंटीन इन दिस रूम, दैट्स अ स्वीट, राइट. सो देयर इज़ अ बेडरूम, देन देयर इज़ अ बाथरूम एंड देन देयर इज़ अ वार्डरोब. ये लोग मेरे क्वारंटीन जोन को पार करके अंदर जा चुके थे. सब जगह जा रहे हैं, सूटकेसेस निकाल रहे हैं, कपड़े निकाल रहे हैं, अपनी चीज़ें ले रहे हैं. काविश वहाँ पर सोफ़ा पे बैठा हुआ है एंड ही वॉज जस्ट शॉक्ड दैट व्हाट इज़ हैपनिंग. और अब मैं उसको थेरेपी सेशंस के लिए ले जा रही हूँ कि नहीं बेटा, पापा शूट कर रहे हैं, यू नो पापा आपसे मिलेंगे, वो सब चीज़ें हो रही है. और यहाँ पे पापा आके खड़े हो जाते हैं कोविड के टाइम पे, जहाँ दुनिया में लोग मर रहे हैं. और मेरी मॉम बोल रही है बेटा उसको कोविड हुआ है, वो क्वारंटीन उसका जोन है, वहाँ मत जाओ. यू वांट टू शो माई कोविड रिपोर्ट. एंड मैं छुट्टी लेकर अपने प्रोडक्शन से बैठी थी बिकॉज ऑब्वियसली यू नो एवरीवन वाज इन द क्वारंटीन जोन एंड यू नो यू कांट एक्सपोज द एंटायर यूनिट टू इट. सो दिस वाज ऑन द 28th of October that I was detected positive. And this happened on the 2nd of November. So then I called the cops and we went to the police station and then I gave a written complaint. You have that written complaint? वो वाला, इसके पहले वाला, हाँ. Complaint against husband Karan Mehra 2 November को to the senior inspector for barging in unannounced with strangers at home and misbehaving. तो जो कुछ भी मैंने आप लोगों को समझाया या बताया, दैट इज़ देयर इन दैट. नाउ एक तरफ मैं देख रही हूँ कि करण मेहरा को मिल रहे हैं सर्टिफिकेट्स ऑन व्हाट हिज योगदान टू कोविड हैज़ बिन, और दूसरी तरफ अब अपने ही घर में गुंडों की तरह, जब आपकी 16 तारीख को कोर्ट में ऑलरेडी डेट है जहाँ पर आपने अप्लाई किया है कि आपको कुछ सामान अपने घर से लेना है, तो आप 2 तारीख को ये काम क्यों कर रहे हो? वाई आर यू नॉट वेटिंग टू गो फॉर द कोर्ट डेट? You can wait, right? Maybe you are in fear that the court might not allow you, so you just want to do this or whatever your reasons are. I don't know, but this is not the way to behave. जो करण ने बीच में इंटरव्यू में नहीं कहा था, बीच में जब मैं काविश को 2 मिनट के लिए मिला था, उसने कहा पापा आई लव यू, आई मिस यू, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं तो मतलब इसको लेकर ही रहूँगा. ऑब्वियसली ही इज़ अ चाइल्ड, ही इज़ गोना टेल यू आई लव यू, आई मिस यू, दैट्स अ गुड थिंग. एंड यू ऑल्सो हैव टू थिंक कि अगर वो 5 महीने बाद भी आई लव यू, आई मिस यू बोल रहा है तो माँ ने उसको फीड नहीं किया है. ऐसा ये प्रोसीजर था इनका. ये आपका जो वीडियो आपने जो बनाया, ये आपने इंस्टाग्राम कहीं पर भी आपने ऑफ कोर्स नहीं डाला है. और अब
ऑफ कोर्स बताई है. अब क्योंकि हमारा केस चल रहा है, दैट्स व्हाई आई हैड टू रिकॉर्ड इट, बिकॉज हाउ एल्स वुड आई प्रूव? आई कॉल द कॉप्स, राइट? देन आई हैड टू शो देम द वीडियोस कि वो ये कर रहा था. ऑब्वियसली बिकॉज आई हैव अ केस गोइंग ऑन, आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ इफ समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग. उस टाइम पे तो आप पैनिक कर जाते हो, राइट? बिकॉज एक तो आपको ऑलरेडी कोविड है, यू आर फीलिंग वीक एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सडनली मॉम इज कॉलिंग, वो आ गया 6 लोगों के साथ एंड ऑल. तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत क्या है? Why do you have to be so intimidating? You can do it in a civilized manner. You don't have to scare people. Disha, he had also accused in the press conference earlier, he accused कि आपने उनको, जब वो कपड़े लेने आए थे तो आपने उनको कपड़े नहीं दिए थे, सिर्फ उनको मैं 4 जोड़ी कपड़े देकर उनके पुराने, and you returned. And second, he also accused your mom and जो उन्होंने आपको आपके रूममेट पार्टनर है कि everybody is together and everybody is stopping him from entering the house. And You mean the day he entered? This no, day? Before, ये सेकंड चीज़ है. एंड फर्स्ट थिंग No, it's not right. It's not right. आपने उनको कपड़े और ये सारी चीज़ें दी नहीं, इवन व्हेन ही वांटेड. पर मैं क्यों नहीं? See, anyway, obviously. Parents or doing or whatever. नहीं, ये हो गया. You've shown this already. See, he's taken everything. No, I have a video of that. मैंने वो नहीं अटैच किया. देखिए, 1 जून को जब ये हुआ था तो करण को कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे. आई थिंक 1 को ही शायद सुबह चाहिए थे या 2 को, मुझे याद नहीं है. वो उनको दे दिए गए थे. हमारे एक दोस्त हैं जो बिल्डिंग में ही रहते हैं, उनको ये बात पता. आई डोंट थिंक आई शुड बी टेकिंग हिज नेम, बट आई एम श्योर इफ़ ही इज़ वॉचिंग द कॉन्फ्रेंस ही वुड नो. उनके हाथों ही ये सामान गया था, उनकी सारी जो भी उनको चीज़ें चाहिए थी. कुछ दिनों बाद वो फिर से आए और उन्होंने बोला करण ने कुछ चीज़ें मांगी है. उसकी सारी चीज़ें मैंने उसमें डाल दी. उसके सारी, चाहे वो अंडरगारमेंट्स हो या टी शर्ट्स हो, जितना कुछ भी मैं डाल सकती थी, जो भी सूटकेसेस मेरे पास थे, उसमें मैंने दे दिए उसको. उसके बाद मैं कैसे दूँ? यही तो मैं बोल रही हूँ. आई हैव बीन आस्किंग द लॉयर्स एंड ही शुड बी मोर बॉदर्ड अबाउट इट, एंड ही ऑलरेडी पुट इट इन द कोर्ट, जिसकी डेट उसकी 16th को थी, एंड 2nd को ही केम डूइंग ऑल दीज थिंग्स. Why would I stop it? It's not like I'm going to wear his t-shirts or whatever. See, I am a peace-loving person. I want him to live in peace, to have his life and to leave me alone. Story over. ना मुझे उससे कुछ चाहिए, ना उसको मुझसे कुछ चाहिए. होना चाहिए. And that's it. You've shown the statement to the cops and all, right? Email भी बता दिया आपने. Certificate आपने बताया वो वाला. That's okay. Now I want to talk about, these were the main allegations that I wanted to counter. I want to talk about these character witnesses जो आ गए हैं सामने. इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है? इनका कैरेक्टर विटनेस कौन बनेगा और फिर उनका कौन बनेगा? और ये कैरेक्टर विटनेस क्या होता है? ये मीडिया ट्रायल में आप कैरेक्टर विटनेस बन रहे हो. Why don't you go to the court if you truly want to support somebody? Be a character witness in the court. See, कैरेक्टर का तो ऐसा, आई थिंक करण का भी एक बॉडी ऑफ वर्क है, मेरा भी एक बॉडी ऑफ वर्क है. दिस was probably the first controversy of our life and it's unfortunate जो कुछ भी हो रहा है. और ये character witnesses are being so funny कि oh my god मेरा ये मैच हो रहा है क्या, मेरे को ये ignore. What is this? आपने तमाशा बना के रखा है दूसरों की ज़िंदगी का. जो दो लोग एक दूसरे के साथ रहे, 13 साल मैं उस आदमी के साथ रही हूँ. मेरे से बड़ा कैरेक्टर विटनेस उसका कौन हो सकता है? और आप मेरे बच्चे के बारे में सोचो, बोलो वी आर बॉदर्ड अबाउट द चाइल्ड, देन आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द वे टू बी बॉदर्ड अबाउट द चाइल्ड. डिड यू रीच आउट टू मी एंड से लेट अस टेक केयर ऑफ काविश का ये पार्ट, या ये तुमको क्या ज़रूरत है? यू आर ऑल्सो मदर, यू ऑल्सो हैव 2 चिल्ड्रन. हेल्प ऐसे होती है. एक तरफ आप बोल रहे हो वीडियो में दैट बहुत खुददार लड़की है, मैंने उसको पूछा था हेल्प के लिए, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो आई थिंक दिस इज अबाउट एलिमनी. Did you know that Karan has actually asked for alimony? Those character witnesses, just on a, क्योंकि उसने उसको मैसेज किया तो वो कैरेक्टर विटनेस बन गई. But aren't these character witnesses your own friends? Like they have been your. It's just surprising, you know. They are saying कि अगर मैं एक्टर नहीं होती तो मैं जासूस होती. ये कैसे टाइप के वीडियोस? I don't even want to comment on it and make a mockery out of this. I don't want to pay heed to these kind of people. I think people should mind their own business. और दूसरे मेरे करीबी दोस्त जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं कि निशा इज़ हंग्री फॉर लव बिकॉज उसे बचपन में प्यार नहीं मिला, उसके पापा भी नहीं थे. इसको आप इतने ड्रामेटिकली पैकेज कर रहे हो. हम में से कई लोग होंगे जिनके पापा नहीं होंगे या इन्हें प्यार नहीं मिला. मैंने तो अपने आप को एज अ प्रोफेशनल आउट देयर ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया है. जो चीज़, जो कॉन्वर्सेशन आप एक दोस्त के साथ सेंसिटिवली
अलग से प्राइवेट में करते हो, उसको आपको लगता है यू आर एट लिबर्टी टू गो आउट एनीवेयर एंड टॉक अबाउट इट इन एनी लाइट कैजुअली व्हेन योर फ्रेंड इज अ पार्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी। आप दोस्ती निभा रहे हो और आप इतने ज़्यादा बिजी हो कि जो किटी आपकी दोस्त ने फॉर्म की थी वो किटी को तोड़ के आप एक नई किटी जल्दी जल्दी फॉर्म कर रहे हो। दीज आर योर फ्रेंड्स। It's just sad and disheartening. Like I said, look, I'm working hard. I'm working day and night. I want to use all my energies and I want to gather all my strength, and I want to do this for my child, for my future, for my child's future. Because if I don't do it, nobody else will. Not my friends, not the character witnesses, not his father. If his father really wants to do something, then उसका एक सही legal तरीका होता है, वो follow करो। बट व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग निशा कि ये जो आपके फ्रेंड्स थे आपके अगेंस्ट जाकर आर नाउ सपोर्टिंग कास्ट? I really don't know because I don't have the time to go and gossip 2-2 घंटे सब लोगों के साथ बैठ के। I have not done that. All my friends know it. मैं कभी किसी को जाके मैंने अपना दुखड़ा नहीं सुनाया because I don't have the time and neither is that my inclination. I don't know what happened. Between me and my best friend, I think it was just a difference of opinion on something, and then a lot of jazz and a lot of crap happened which I don't want to get into. बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे पास किए गए बट जो मुझे नहीं लगता था कि उनकी फ्रीडम थी ऐसा बोलना। बट आई जस्ट फील दैट दे स्टिल माई फ्रेंड्स एंड आई हैव स्पेंट सम गुड टाइम विद देम। आई जस्ट वांट टू टेल देम टू बैक ऑफ एंड ले ऑफ एंड टू जस्ट माइंड देयर ओन बिजनेस एंड टू जस्ट लेट मी बी। दैट्स ऑल आई एम आस्किंग। एंड आप सभी से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं किसी के लिए भी बात करने का, तो प्लीज़ पहले उन फैक्ट्स को वेरीफाई कर लीजिए क्योंकि दे बिकम वेरी डैमेजिंग। द मीडिया इज़ वेरी पावरफुल, you all know that. So let's use our power in the right way. Because I'm a mother, I'm also a daughter, I also have responsibilities and trolling affects me too. भले ही मैं मेकअप लगा के अपने बाल सीधे करके आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, बट आई एम ह्यूमन, यू नो, एंड आई हैव वर्क। तो प्लीज़ जब आप लोग एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, क्रॉस चेक दोज फैक्ट्स। येस, द पर्सन माइट नॉट बी रेडी टू टॉक अबाउट इट द नेक्स्ट डे, इट्स ओके बिकॉज शी इज़ हर्ट, शी इज़ इन पेन। हम बैडमिंटन नहीं खेल रहे कि वो वहाँ से मारेगा तो मैं यहाँ से मारूंगी। सो लेट्स जस्ट टेक दीज थिंग्स अ लिटिल मोर सीरियसली। एंड this is all I want to say, and I want to just say that let me focus, let me work towards my child, और मैं उसका ख्याल रख लूँगी। And I want to give this message out to Karan too. Please stop this. Stop this. ये एक तमाशा बनता जा रहा है। Don't get into all these media trial things. Don't do it. Let's end this in a dignified way. We are human beings. We are civilized people. We can do it. एक तरफ आप बोल रहे हो काविश मेरा बच्चा बच्चा और आप ये वीडियोस बना रहे हो। मुझे हमेशा डर लगा रहता है वो गार्डन में जाएगा, किसी के हाथ से फ़ोन करके अपने मम्मा की फ़ोटो ना देख ले। मैं कितना प्रोटेक्ट करूँगी उसको? एंड आई फील वल्नरेबल व्हेन आई गेट ऑल दीज ट्रोल्स एंड आई गो इनटू अ स्मॉल सिटी विथ माई चाइल्ड। मुझे लगता है मेरे ऊपर कोई कुछ फेंक के ना चला जाए, मुझे कोई कुछ बोल ना दे बच्चे के सामने। आई एम अ मदर, सो स्टॉप डूइंग दिस यार, जस्ट स्टॉप इट। लास्टली मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि आई हैव फुल फेथ इन द मुंबई पुलिस एंड द जुडिशियल सिस्टम। आई एम श्योर दैट आई विल गेट माई जस्टिस एंड आई थिंक Karan Mehra should stop. And I want to say that I'm not playing the sympathy card. I'm not playing the woman's card. He is in fact playing the sympathy card, and he should not do that. He should not take advantage of his fame and position to do this. That's all, guys. Thank you so much for coming in today, and I really hope that इसका जो result आए वो positive आए, and I really hope that this kind of makes sense to Karan too, and I hope that we can put an amicable end to this whole situation and अपनी अपनी लाइफ हम शुरू करें, because I'm sure Karan का काम भी असर हो रहा होगा, because यही उसने कोर्ट में भी बोला है। तो ये काम जो YouTube बनाने वाला है ये बंद करते हैं और अपने काम में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। या आपके साथ जो फर्स्ट डे आपके इंसिडेंट के टाइम पे जो खड़े थे वो करण के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके अगेंस्ट भी कुछ बोलते नजर आए, तो आप अभी फिलहाल उनके साथ कांटेक्ट में हो नहीं हो, या आप नहीं, मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ। कि फिर फर्स्ट डे आपको आना ही नहीं था अगर आपको ऐसे बोलना था?
मैं नहीं हूँ वैसी. इनफैक्ट लोगों ने ही मुझे मैसेजेस भेजते गए. ठीक है, once you get the message, then I move on, right? I withdraw. I don't attack. I don't do that kind of stuff. I just withdraw because मुझे उठना है ना. अब मैं पागल ही हो जाऊँ या अपने आप को दरवाजे के पीछे बंद करके रो लूँ, वो लग्जरी भी नहीं थी मेरे पास. जब हम दुखी होते हैं तो हम कभी मन नहीं होता किसी से बात करने का. बट आई हैव अ चाइल्ड, आई हैव टू ऑलवेज हैव अ स्माइलिंग फेस. एक भी दिन उसने अपना स्कूल नहीं मिस किया, चाहे मुझे चोट लगी हो या कुछ भी हो. So I just want to concentrate on that. I want to raise a healthy and a happy human. And if Karan Mehra cannot contribute to raising that child with me, then please at least back off and just let me live alone. That's it.